So now we'll be looking at the chapter Electronic Devices, and in this chapter you would come to know about the basics of things like semiconductors and other electronic devices and their method of operation in terms of the logic that is implemented. Also, this will be the first time probably you'd come to read or study about logic in physics. Yes, instead of transistors, in logic math. gates. Okay, so this is the first time you'll be exposed to such concepts, and this will be slightly different from the mechanics and the electrostatics and the current and electricity portions that you have gone through, also the waves and all, because this is more closer to what really is useful to us in terms of what is industrially manufactured and what we get to use. So this all of your computers and all that is based indirectly on all this or which you're going to study now. So let's begin. Yes, so fine. In the electronic devices, it comprises of the semiconductors, the uses of transistors, what are the transistors, logic gates, and so let's start. Now, since the first thing we are gonna study is the semiconductors, let's know its basics. Right. So, the solids can be divided into two parts. One are the crystalline solids, and one is the anisotropic and the amorphous solids. Right. The crystalline solids are anisotropic, the amorphous solids are isotropic. Correct. So what do you think means the anisotropic? Means the anisotropic means it is used to describe the situations and properties very systematically which are dependent on the direction. Right. Means they are not uniform. Like in a given direction, they are systematically arranged but they are not uniform. Right. The first example when somebody says that which comes to my mind is diamond. Yes. And in case of amorphous solids, in a given direction, it is uniform. Right. So, in the isotropy refers to the uniformity of quantities in any orientation or direction. Right. So, let's move on to the semiconductors. In that, the main thing is the energy gap. Right. The energy gap mainly refers to the energy difference between the conduction band and the valence band. Right. So, here you might be thinking what is the valence band and what is the conduction band. Okay. The valence band is usually like when we take an atom, if it is a normal state, that is known as valence band. Right. But here we are going to study semiconductors. In semiconductors, for the conduction to happen, the electron should be in the conduction band. Right. So the electrons have to jump to that particular state. That state is known as conduction band, and they require a certain energy. And this region is known as the forbidden gap, where the electrons never are found. Right. And so now we'll study what are the energy gaps and what are the insulators and conductors. Okay. From around 3 to 4 years back, we will be studying what are conductors, what are insulators. But here we'll be studying something practical. Like, since we have studied about the energy gap, we can tell that in the insulators, the energy gap is very high. Right. Because of which the electrons cannot easily jump, so that the conduction will not happen. So the insulators cannot conduct easily. Right. In other words, the energy barrier that the electrons need to cross in order to conduct, for the material to conduct, is larger. And this is the first time you can quantify what exactly an insulator and a conductor is. Till now we were used to vague definitions. It conducts, doesn't conduct, and all that. So basically now you might have understood why the insulators do not conduct and conductors conduct. You might be having questions from a long time why. What is the thing by which they conduct, they do not conduct? Right. So basically it is the main reason is the energy gap. In conductors we can think that the energy gap is very less. So we can assume that they are almost coincident with each other. Right. So that they can easily conduct, because the conductors usually in the normal state also they conduct electricity or heat, whatever. So so we can say that there is no difference between the conduction and the valence band. Right. But in semiconductors the energy required is less than the insulators, but some energy is required. Okay. So we can say the forbidden gap is small, or the energy gap is small in case of semiconductors and the insulators. Right. But some gap is present. So it's smaller than a conductor, but it's not that big that you cannot make the material to conduct. Yes. Okay. So in terms of words, you can say that this diagram shows the energy gaps in conductors. These are the conductors, insulators and semiconductors. Right. So we can say with the forbidden gap is 0, they are conductors. With the forbidden energy gap is large, they are insulators. So let's mark them. These are the insulators, these are the conductors. And materials in which the forbidden energy gap is very small can be called as a semiconductor. Correct. Now let us study what can be the types of semiconductors. So in one of the aspects, they are divided into intrinsic and extrinsic. Right. So intrinsic semiconductors purely refers to the purest form of the semiconductors. Okay. Like they have no impurity. So if you are taking a silicon semiconductor, then if it has only silicon atoms, then it can be said as an intrinsic semiconductor. Right. And another is a property called Fermi energy level in the intrinsic semiconductors, like the highest energy level which an electron can occupy at 0 Kelvin
is called the Fermi energy level. Right. We'll be using this concept in the theory, the questions we'll be solving later. Okay. So it is one of the important point in this chapter, Right. Fermi energy level. Oh. And next, in that case, we can tell the condition is the ratio of the free electrons to holes is 1:1. Okay. Means like sometimes when the energy is fallen on metal, you meant to study the photoelectric effect. Right. They jump, then a hole is created like Okay. that. So in this case, the ratio of free electrons to holes is 1:1. The free electrons conduct electricity, Okay. and with the increase in the temperature, the ratio remains the same. Okay. It is one of the main things. So you might be thinking that when the temperature increases, the electrons can easily get excited, and the number of electrons will increase. But the thing is, they remain constant. Right, because if the electrons have more energy, they are also more likely to leave, which Yes. means the holes are also more likely to be created. Means when the temperature is increased, then they will have higher velocity too. Right. So they will easily go and recombine with the holes. Correct. So that's the thing. Right. Now we'll talk about the extrinsic semiconductors. Okay. Extrinsic semiconductor means that the semiconductor doped with some other atoms in order to increase their conductivity. Like they can be doped with the trivalent or the pentavalent elements. Like the trivalent elements can be taken as the boron, and the Right. pentavalent can be taken as the phosphorus. Or actually, boron group and the Yeah. 15 group. All elements of the boron group can be used as trivalent impurities, and all Okay. elements of phosphorus group can be used as the pentavalent impurities. So in that, like the fourth group elements usually comprises of the semiconductors, which are the germanium or the silicon. Right. And the process of adding impurities in a controlled manner, they add very small, like they don't like 50-60% they are added. Exactly. In a very small content they are added, and it is called as doping. Right. Like the process of adding them. Like n-type semiconductor is obtained by introducing a pentavalent impurity. Right. We'll solve a question regarding this, and these are one of the topic where the questions can be asked. Right. Since the semiconductors have 4 valence electrons, Okay. but when we are adding a pentavalent, there are 5 electrons. Okay. So basically, the most semiconductors have 4 valence electrons because they are from the carbon group. Yes. Okay. But when adding the pentavalent, there are 5 electrons. So there is excess of electron. Right. So they are negatively charged. In fact, you can intuitively understand this as like this. 14th group electrons or carbon group. That is the semiconductors. Yes. Most semiconductors are from there, and all the doping agents, the trivalent doping, what we dope with, Yes. those are the boron group elements, and the 15 group elements, the nitrogen, phosphorus, that Yes. group, that is the Pentavalent. one with an extra electron. Yes. Actually. Right. So you can see that since there are 4 electrons in the valence shell, In the you can with the see that you semiconductors. either need p-type doping, which Yes. means you want to introduce holes. Yes. So that means you add one less electron. Yes. So where the 13th group come into play. Yes. And similarly, when you want to add electrons, Yes. dope with electrons, you use the 15th group element. Yes. Right. But one thing, like before starting this discussion, like I told, when we add, they're negatively charged. Do you Right. think they're really negatively charged? If you understand carefully, when we add that element, all the items which are present initially Right. were neutral, and now the atom we are adding also is a neutral. Okay. So one thing you have to understand is there are excess of electrons, but they are not negatively charged. Correct. Because we are adding the corresponding number of protons equal to number of electrons, right? Right. So they're not negatively charged, but they have excess of electrons. Exactly. So when we say excess of electrons, we only mean the valence electrons, Yes. because they'll be flowing, and that is why what we mean when we say excess, because protons will not transfer, Yes. no matter how much energy you give So them. the p-type semiconductors are introduced by obtaining or adding a trivalent impurity, Right. which are third group elements. Okay. Since again I have told, since excess of positively charged also present, Right. so they are known as p-type semiconductors. Okay. Now जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ेंगे. इसमें है फॉरवर्ड बायस जंक्शन डायोड. सो अभी हम फॉरवर्ड बायस में क्या होता है कि हम एक सेमी कंडक्टर को हम जब डोप करते हैं पेंटावलेंट ट्राइवलेंट इम्प्योरिटी से, Right. जिस साइड ट्राइवलेंट इम्प्योरिटी होता है उस साइड पी जंक्शन होता है, Okay. पी साइड कहते हैं उसको. जिस साइड पेंटावलेंट होता है उसको एन साइड कहते हैं. सॉरी, जिस साइड पेंटावलेंट होता है Right. वो एन साइड होता है, जिस साइड ट्राइवलेंट होता है उस दिन पी साइड होता है. क्योंकि हमने देखा था कि पी टाइप होगा तो पी कहते हैं, Right. अगर पेंटावलेंट होगा तो एन साइड कहते हैं. Okay. जब वो दोनों को हम डोप करते हैं तो ऐसा होता है कि वो दोनों कोइंसाइड होते हैं एक जगह, कि यहाँ पे इस एक पट्टे जैसा हमने लिया है तो यहाँ तक पी होता है पूरा, यहाँ तक एन होता है. Right. ऐसा नहीं होता था कि सडनली पी से एन हो जाएगा, Mhm. ट्राइवलेंट इम्प्योरिटी पेंटावलेंट हो जाएगा. तो वहाँ पे एक जंक्शन डायोड फॉर्म होता है. Right. तो उसमें क्या होता है, अगर हम पी साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें और Okay. एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें बैटरी के, Hmm. तो एक फॉरवर्ड बायस होता है. Right.
Because you're not making the electrons to move in the opposite direction of what would they would normally move. हाँ, Okay. क्योंकि वो जो डायरेक्शन मूव करने वाला उसी में कनेक्ट किया बैटरी को भी, Right. तो So उसको that is for- why we call it the. हाँ, इसलिए फॉरवर्ड बायस कहते हैं. Right. उसके बाद हम कहते हैं कि हमने इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है ना, Okay. इससे पी का पोटेंशियल ज्यादा है और एन का पोटेंशियल कम है. Right. उसके बाद इसमें क्या होता है कि इसमें हम सीरीज वही डायरेक्शन में रखें जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव होने चाहिए. तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव होते रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि ये जो बैरियर बना रहता है पीएन जंक्शन के बीच का, Right. वो डिक्रीज हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जंप होते रहते हैं. Okay. तो और क्या और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उन्हें. Right. तो उससे क्या होता है कि वो लेयर जो रहता है बैरियर वो डिमिनिश हो जाता है. Okay. इसलिए हम कहते हैं इन जनरल व्हेन द पोटेंशियल ऑफ पी टाइप इज ग्रेटर देन द एन टाइप, एटलीस्ट बैरियर पोटेंशियल द विड्थ एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द जंक्शन टाइप डिक्रीजेस इन फॉरवर्ड बायस. Right. क्योंकि वो डिक्रीज होते रहता है इसलिए लो रेजिस्टेंस देता है. Right. और आइडियल डायोड लेंगे तो हम जानते हैं कि आइडियल डायोड एक बहुत रेयर केस में हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल इवेंट है. Okay. फिर भी इसलिए हम कहते हैं आइडियल डायोड में रेजिस्टेंस 0 है. Okay. Because we assume that एकदम perfectly the flow हाँ. is there. Okay. अगर हम इसके अप्लाइड वोल्टेज को बैरियर पोटेंशियल ज्यादा करते हैं Mhm. तो इनडायरेक्टली बैरियर तो ब्रेक हो जाएगा. Right. तो उसमें क्या होता है कि मेजर करंट कैरियर्स जंक्शन में डिफ्यूज हो जाते हैं, मतलब उससे एकदम स्पीड से पास हो जाते हैं उससे, Okay. और एक करंट प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से, उसको डिफ्यूजन करंट कहते हैं. Right. क्योंकि हम इसको डिफ्यूज करते हैं, मींस इलेक्ट्रॉन्स हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो रहे हैं, Right. तो इसको डिफ्यूजन करंट कहते हैं. Okay. अब नेक्स्ट अभी रिवर्स बायस में देखेंगे कि वो ड्रिफ्ट होते हैं, इसलिए उसको ड्रिफ्ट करंट कहेंगे. Right. So there basically these two types of current exist, drift current and diffusion current. So you just got introduced to what we call diffusion current. यस. अभी डिफ्यूजन करंट उसको हम वर्ड में कहेंगे तो ऐसे कहेंगे कि डिफ्यूजन करंट इज अ करंट इन सेमीकंडक्टर कॉज्ड बाय द डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर्स जो Right. होल से इलेक्ट्रॉन्स है. Okay. एंड डिफ्यूजन करंट कैन बी द सेम और द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए ड्रिफ्ट करंट. Okay. मतलब हमने कहा है कि जब कब होता है जब उसका अप्लाइड वोल्टेज इसके बैरियर वोल्टेज से ज्यादा हो. Right. क्यों बैरियर वोल्टेज है? क्योंकि इस साइड पेंटालेंट माना पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव है. Right. तो पॉजिटिव नेगेटिव माना इसको हम वोल्टेज कह सकते हैं, इसलिए उसको बैरियर वोल्टेज कहते हैं. उसको पास करने के लिए बैरियर वोल्टेज की जरूरत होती है. Right. तो अगर हम इसको रिवर्स डायरेक्शन में भी लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो होंगे ही, Okay. इसलिए कह सकते हैं कि इट कैन बी द सेम और द ऑपोजिट डायरेक्शन. Right. सो अभी हम रिवर्स बायस के बारे में पढ़ेंगे. Okay. One interesting thing, one interesting way to distinguish between diffusion current and drift current is that diffusion, the term applies in chemistry also, right? Diffusion happens against concentration gradient here in chemistry, and here also actually. And that is why diffusion current will be there no matter, it might be opposite to, the potential applied. Interesting here is the part that when you apply potential, you decide which direction the drift current is going to be in, but you cannot decide about the diffusion current. यस. Okay. ठीक है, एक चीज हम भूल गए थे अभी कि फॉरवर्ड बायस में हमने आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पढ़ा था, अभी वो भी पढ़ते हैं. वो भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है. Right. उसमें ये होता है कि जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं इसमें, Mhm. तो उसका करंट से हम रिलेशन फाइंड करते हैं. Okay. तो यहाँ देख रहे हो कि एक पैराबोलिक कर्व है. Right. तो हम जानते हैं कि पैराबोलिक कर्व है ऑलमोस्ट ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4a/y. Right. तो ऐसे बेसिक इक्वेशन इसका. Okay. इसमें x वोल्ट है, सब कह सकते हैं कि द स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट. Okay. तो इसके बेस आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम Right. में, लेकिन बहुत कम आते हैं. Right. तो आपको बस ये याद रखना Because you should know that this is a device which follows the square law instead of the Ohm's law or Yeah. something like that. But it's not very common for such questions to be asked. But still, we would like you to be introduced to the concept of devices which don't obey Ohm's law, which have a different तो law. ओम्स लॉ बेसिकली होता है v इज प्रोपोर्शनल टू i. यहाँ पे v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू i है, बस वो एक डिफरेंस है. Right. अभी हम पढ़ेंगे रिवर्स बेस के बारे में. Okay. सो बेसिकली रिवर्स बेस में क्या होता है कि पीएन जंक्शन डायोड करंट पास नहीं करता क्योंकि हम इसको रिवर्स डायरेक्शन में कनेक्ट करते हैं. Right. इसलिए सिंस हमने रिवर्स डायरेक्शन में कनेक्ट किया है, इसमें करंट बहुत छोटा होता है, लाइक माइक्रो एम्पियर्स सॉरी के फॉर्म में होता है. Right. सो अभी इसमें क्या होता है, या फिर नैनो एम्पियर्स भी हो सकता है, Okay. और इसमें माइनॉरिटी कैरियर्स ही फ्लो करते हैं करंट को मैक्स मोस्टली, क्योंकि हम रिवर्स डायरेक्शन में कर रहे हैं. और मींस अभी इसको वर्ड्स में कहेंगे तो डेफिनेशन का कह सकते हैं द पीएन जंक्शन डज नॉट कनेक्ट अप्रिशिएबल करंट इन द रिवर्स बायस पोजीशन, क्योंकि हमने रिवर्स कनेक्ट किया. करंट ऑफ द न्यू एम्पियर और इन केस ऑफ जर्मेनियम नैनो एम्पियर, क्योंकि सिलिकॉन में कनेक्शन ज्यादा होता है. Right. इसमें माइक्रो एम्पियर है. Okay. is using minority charge carriers, and since it is moving the reverse direction means ये उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है, इसको हम रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं. Okay. इसमें भी अगर हम रिवर्स वोल्टेज को बैरियर वोल्टेज से ज्यादा कहते हैं, इधर बैरियर वोल्टेज को डी वोल्टेज कहते हैं रिवर्स बेस में. Right. तो क्या होता है कि कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे, क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं तो फोर्सफुली कर रहे हैं, Okay. इसलिए बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं और ड्रिफ्ट होते हैं. यहाँ पे हमने कहा था कि फॉरवर्ड बायस में डिफ्यूजन होता है, तो रिवर्स बायस में ड्रिफ्ट होता है. Right. सो यहाँ पे ड्रिफ्ट ऑफ चार्ज कैरियर्स होता है
और वो जंक्शन के बीच में से होता है, Right. तो इसको हम ड्रिफ्ट करंट कहते हैं. और ड्रिफ्ट करंट इज द करंट और मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर व्हिच इज ड्यू टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. क्योंकि हम देखा था कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव होंगे, लेकिन हमने रिवर्स अप्लाई में किया है, मतलब अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव हो रहे हैं ना, इससे हम कहेंगे कि मोशन इज ड्यू टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. और इनकी इलेक्ट्रोमोटिव से होता है. सेम इसमें भी हम देखेंगे कि v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू i, लेकिन यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन में हो रहा है. जिस डायरेक्शन में वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उसके रिवर्स होंगे, इसलिए वो माइनस v लिया है हमने, इसलिए वो नेगेटिव डायरेक्शन में है. अभी इसमें एक छोटा सा टॉपिक है एवलांक और जेनर ब्रेकडाउन. उसमें क्या होता है कि पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बेस में ज्यादा करंट फ्लो नहीं करता, हमने देखा था अभी. बहुत छोटा होता है, माइक्रो एम्पियर या नैनो एम्पियर. तो उसमें क्या होता है कि करंट जब रिवर्स डायरेक्शन में होता है उसको रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं, पता है. लेकिन अगर अप्लाइड वोल्टेज रिवर्स नी वोल्टेज से ज्यादा होता है तो हमने पढ़ा था कि ऐसे ब्रेक हो जाता है, तो उसको हम एवलांक ब्रेकडाउन कहते हैं. तो वो फेनोमेना एवलांक ब्रेकडाउन है. तो हमने ये भी पढ़ लिया. अभी हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स. So you know this concept is often used. For example, if you have multiple choice correct questions, you will be given an effect which takes place, and you'll be asked to find out the reason. And things like avalanche effect and all these things are often the reason some interesting things happen in graphs or generally in devices. हाँ, तो पूछ सकते हैं कि फेनोमेनन का नाम क्या है. Exactly. So in such situations, you need to be familiar with such little concepts. अभी यूज ऑफ सेमीकंडक्टर्स में एक पढ़ेंगे हम, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर. इसमें हमने देखा है एक लगाया है एसी करंट. एसी करंट हम जानते हैं कि हाफ टाइम एक डायरेक्शन में फ्लो होता है, बाकी हाफ टाइम रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होता है. तो इसमें क्या होता है, जब एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होता है तो फॉरवर्ड बायस होता है. तो फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होगा. फॉर एग्जाम्पल जब करंट ऐसा पास हो रहा है उसमें इंड्यूस होगा इस डायरेक्शन में, और फॉरवर्ड बायस से पास होगा तो उसी हाफ में करंट आएगा. इसमें इंड्यूस कर रहे हैं हम. और जब रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा होगा तो रिवर्स बेस होगा. रिवर्स बेस में हम जानते हैं करंट बहुत कम आता है. और बेसिकली इसको नेग्लेक्ट करते हैं करंट को, इसलिए तब करंट नहीं आता है. और एक्चुअली क्या होता है कि रिवर्स डायरेक्शन में यहाँ पे जो डायरेक्ट हमने कनेक्ट किया है और रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो ही नहीं करता है, तो यहाँ पे जीरो आ जाता है. एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला होता है इसमें. हमने यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर का एफिशिएंसी है 0.406 इंटू RL बाई RF प्लस RL. यहाँ पे RL क्या होता है, RL इज द लोड रेसिस्टेंस जो हमने कनेक्ट किया है यहाँ पे, और RF इज द फॉरवर्ड रेसिस्टेंस जो हम यहाँ कनेक्ट करते हैं. And these numbers that we see here 0.406 and 0.812, these have come from the properties of the devices, the semiconductor devices that we use. ये आपका डेरिवेशन आउट ऑफ सिलेबस में बहुत मुश्किल है. Right. So but we can still tell you that it is due to the properties of the semiconductor devices that we are using. हाँ, तो एक और बात यहाँ पे देखना है कि मैक्सिमम होगा जब RF 0 होगा तो उसका मैक्सिमम एफिशिएंसी 40.6% ही है. अब यहाँ तक अभी सिलेबस में देख ही रहोगे कि आइडल डिवाइस बनाना बहुत मुश्किल है. सेम केस यहाँ पे भी है, इसका मैक्सिमम एफिशिएंसी 40.6% है. नेक्स्ट फुल वेव रेक्टिफायर लेंगे. इसमें क्या होता है कि हम दो डायोड कनेक्ट करते हैं ताकि रिवर्स डायरेक्शन में एक काम करे. जब एक फॉरवर्ड में हो तो एक काम करेगा, दूसरा रिवर्स में होगा ताकि डबल वैल्यू ना आए. जब एक रिवर्स हो जाएगा तो दूसरा फॉरवर्ड में होगा. तो उससे क्या होता है कि जो भी डायरेक्शन में एसी करंट प्रोड्यूस कर रहा हो उसमें इंड्यूस होगा और करंट आएगा. यहाँ देख रहे हैं हम ऐसे. लेकिन यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में दिखा रहे हैं क्योंकि इसके लिए वो एक डायरेक्शन पॉजिटिव होगा, एक डायरेक्शन नेगेटिव होगा. लेकिन इसके लिए हमने दो डायोड कनेक्ट किया, पूरा पॉजिटिव ही होगा. उसके बाद सेम फॉर्मूला इसमें होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि हम डबल करंट आ रहा है तो डायरेक्टली इसका डबल आ जाता है फॉर्मूला 82 करने पर. तो मैक्सिमम यहाँ पे भी एफिशिएंसी होगा 81.2%. नेक्स्ट फुल वेव रेक्टिफायर का एक पार्ट होता है जीनार डायोड. उसमें क्या होता है कि रिवर्स बेस जब होता है तो हमको करंट चाहिए ही नहीं. तो क्या कहते हैं जीनार डायोड, डेफिनेशन है कि जीनार डायोड इज रिवर्स बेस हेवीली डोप्ड सिलिकॉन. डोप करने पर ही ऐसा होता है. तो पीएन जंक्शन डायोड फॉर्म होता है इन द ब्रेकडाउन रीजन क्योंकि हम रिवर्स करंट फ्लो कर रहे हैं. और जीनार डायोड का सिंबल ऐसा होता है, जो ये इतना सिंबल की जरूरत नहीं है क्योंकि ये केवल हाफ वेव रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर के इसमें आता है. और क्यों यूज करते हैं जीनार डायोड को, क्यों हमको वोल्टेज रेगुलेट करना है, क्योंकि जब करंट पास हो रहा है इंड्यूस करके तो उसमें हमको रिवर्स जाते हुए रोकना है. वोल्टेज कभी कभी चेंज कर देते हैं. फॉर एग्जांपल 10 वोल्ट आ रहा है, उसको 2 वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो वोल्टेज रेगुलेटर यूज करते हैं. और सर्किट डायग्राम में हमने जो देखा है वैल्यूज है, ये I है, ये IL है, ये IZ है. तो हम इसके रिलेशंस बताएंगे. जैसे I इक्वल्स टू IZ प्लस IL, V इन इक्वल्स टू IR प्लस VZ, और V नॉट इक्वल्स टू VZ इक्वल्स टू IL इंटू RL. हाँ, तो ये उसके बेसिक प्रॉपर्टीज है. नेक्स्ट है अभी एप्लीकेशंस ऑफ सेमीकंडक्टर्स. इसमें क्या है, LED एक है, सोलर सेल एक है, ट्रांजिस्टर्स एक है. So you can just see here that these are the three main, major devices that we know of at this point of time where we have applications of semiconductors.
So LED is nothing but a forward biased PN junction diode which emits visible light when energized. So what this sentence tells you about LED here is that it emits visible light and it only when energized. So that should be how you look at it. So we also know that the light is produced by the recombination of electrons and holes at the junction. So what happens is first you impart energy to those particles, then they recombine after that, and then they emit that energy. And this emitted energy is a form of radiation which is in the infrared region. So, okay. And if light emitting diode is reverse biased, then no light would be emitting at all. So that's why, in fact, LED can be damaged on being reverse biased. That is why when you manufacture those devices or you use those devices, this is not a precaution most of you will ever have to take, but this is something that all electronics engineers have in mind. It's one of the basic things. And also, this emitted radiation is in the infrared region is something which people should keep in mind, because it is one of those little bits of information that you can be tested upon. And please make note that light emitting diode is a forward biased PN junction. This is a major point. तो क्या होता है कि एक्चुअली हम अभी पढ़ेंगे कि सोलर सेल कैसा बेस्ड है, एलईडी कैसा बेस्ड है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आने का एक चांस है. राइट. इसलिए आपको याद रखना चाहिए कि कौन सा फॉरवर्ड बेस्ड है, कौन सा रिवर्स बेस्ड है. ओके. अभी हम सोलर सेल पढ़ेंगे, उसमें पीएन जंक्शन डायोड होता है. इसमें एक पी या एन रीजन को बहुत थिन कर देते हैं ताकि इजीली इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाए. राइट. इट इज मेड वेरी थिन सो दैट द लाइट एनर्जी इज नॉट ग्रेटली अब्सॉर्ब्ड बिफोर रीचिंग द जंक्शन. ओके. इसको क्यों यूज करते हैं? हम लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए. हम देखें सोलर पैनल्स होता है जिसमें सनलाइट गिरता है और कहता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है. सोच रहे क्या होता है? तो इसमें डायोड्स यूज किया जाते हैं और ऐसे डायोड्स को हम सोलर सेल कहते हैं. क्या होता है? तो लाइट गिरते हैं तो इलेक्ट्रॉन से निकल जाते हैं. राइट. तो उसमें से हम इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. इसमें क्या होता है, जब हम लाइट शाइन करते हैं मीटर पे, तो हम एक रेजिस्टेंस RL जो यहाँ पे कनेक्ट किया हमने, यहाँ पे करंट आता है. राइट. इंड्यूस होता है. तो क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन से फ्लो हो जाएंगे, निकल जाएंगे, फिर आके जब रिकम्बाइन होंगे तो एनर्जी प्रोड्यूस होगा. वो एनर्जी को हम करंट में कन्वर्ट करेंगे. ये एक डायोड है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ डिफ्यूज होंगे ना, तो उस करंट को हम यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे. राइट. और करंट का मैग्नीट्यूड इंटेंसिटी पे डिपेंड होता है. Right. And one more thing that we have to notice here is that we do make one of the P region or the N region to be very thin, and the effect it has is the fact that not a lot of light energy is greatly absorbed before reaching the junction. But why we need to do this, in fact, is that solar panels or solar cells or however you obtain the energy into those solar cells, they don't they're not exposed to such high levels of energy as other sources of energy, right? So that is why we have to take care of this, that we have to make one of the regions thinner. Okay. Here now we are going to start the transistors. Like in the transistor we have three different regions. One is emitter, one is base, and one is collector. It means in terms of doping we can say that the emitter is heavily doped and the base of a transistor is lightly doped and the collector of a transistor is a moderately doped. Okay, so the three parts of the transistor are basically divided on the basis of how heavily they are doped. Okay, Yes. We now look at the different types of transistors. So अभी हम ट्रांजिस्टर्स के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. इसमें है 3 ट्रांजिस्टर्स के हमने पार्ट्स पढ़े थे, एमिटर, बेस, कलेक्टर. उसमें जो मैक्सिमम थिकनेस होता है वो कलेक्टर का होता है और मिनिमम थिकनेस बेस का होता है. तो वो याद रखने की चीज़ है, इम्पोर्टेंट है. उसके बाद हम ट्रांजिस्टर को 3 कॉन्फ़िगरेशंस में यूज़ करते हैं. एक होता है CB कॉन्फ़िगरेशन, एक होता है CE, एक होता है CC. मतलब कॉमन बेस. वो 3 पार्ट्स का जिस तरह का इंटरेक्शन होता है उसके बेसिस पे होता है. हाँ, एक C मतलब कॉमन होता है, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर. Okay. इसमें क्या होता है कि हम ट्रांजिस्टर्स में बेस को कॉमन रख के यूज़ कर सकते हैं, या एमिटर को कॉमन करके यूज़ सकते हैं, या कलेक्टर को कॉमन रख के यूज़ कर सकते हैं. Okay. मोस्टली हम CE माना कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर ही यूज़ करते हैं. और ट्रांजिस्टर्स को हम ऑसिलेटर्स या स्विचेस या एम्पलीफायर के उसमें भी यूज़ कर सकते हैं. Okay. अभी On the basis of doping, we again have 2 types of transistors. हाँ, Okay. सो उसमें एक होता है NPN ट्रांजिस्टर. इसमें क्या होता है कि इसमें जो करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है, और करंट का डायरेक्शन बेस टू एमिटर है. ये इंपॉर्टेंट है कि करंट का डायरेक्शन इसमें बेस टू एमिटर है, और एमिटर करंट जो IE से हम डिनोट करते हैं Okay. वो बेस करंट और कलेक्टर करंट का सम है, मतलब IB प्लस IC. Okay, तो first हमने देखा NPN
basically consists of two N junctions, which are with sandwich, one smaller N हाँ junction. Sorry, P junction. और इसके अंदर the current is mainly due to electrons. That is, electrons are majority carriers, and one thing that we have to remember is कि the current always flows from base to emitter. यस Okay, we now look at the second, that is the PNP transistor. हाँ नहीं एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है को कह सकते हैं कि IE 97 to 98% कॉम्प्रोमाइज करता है NPN में और 2 to 3% ही IE होता है. अच्छा, ये भी हम NPN की बात कर रहे हैं. हाँ Okay. अब PNP के बारे में बात करेंगे. तो इसमें क्या होता है कि इसमें मैक्सिमम करंट होल्स की वजह से होता है और इसमें होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है. Okay. जैसे NPN में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे, PNP में होल्स होते हैं क्योंकि NPN माना 2 N है. N में जानते हैं कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसलिए मेजॉरिटी कैरियर्स है. PNP में 2 P है मतलब P इज द मेजॉरिटी. Okay. उसके बाद इसमें बेस करंट का डायरेक्शन एमिटर टू बेस है, दोनों में रिवर्स है ध्यान से देखे तो. उसके बाद ये एक और है कि एमिटर जो इसमें एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड है और कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस्ड. माना जो 3 पार्ट थे ट्रांजिस्टर के उसमें एक फॉरवर्ड बायस्ड है और एक रिवर्स बायस्ड है. Okay. और यहाँ पे भी IE इक्वल्स टू IC प्लस IB अप्लाई होता है, लेकिन यहाँ पे कलेक्टर करंट एमिटर करंट से कम है. Okay. यहाँ पे देखा था कि IC 97 to 98% होता है, लेकिन यहाँ पे IE से भी कम है IC. Okay. उसके बाद एक वर्ड्स में कहें तो एमिटर इज द सोर्स ऑफ द चार्ज कैरियर्स इन अ ट्रांजिस्टर. द कलेक्टर रिसीव्स मोस्ट ऑफ द चार्ज कैरियर्स एंड द बेस कंट्रोल्स द कलेक्टर करंट. जो कलेक्टर पे करंट आता है उसको बेस कंट्रोल करता है. तो हम कहते हैं कि इसको हम एम्पलीफायर स्विच की तरह यूज कर सकते हैं. तो हम अभी सीखेंगे क्यों ऐसे कैसे यूज कर सकते हैं इसको. इसमें क्या होता है कि हम एम्पलीफाई करते हैं करंट को. कैसे? करंट एप्लीकेशन फैक्टर एक होता है जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में होता है और उसमें हम करंट एप्लीकेशन फैक्टर अल्फा को डिटरमाइन करते हैं IC by IE जो एक कांस्टेंट है. Okay. और यहाँ पे इसमें IC हमारा कलेक्टर करंट और IE हमारा हाँ एमिटर करंट का डिफरेंस है. हाँ यहाँ पे उसके बाद करंट एप्लीकेशन फैक्टर कॉमन एमिटर डिफरेंस में होता है बीटा डेल्टा IC by डेल्टा IE Okay. जो कांस्टेंट है. यहाँ पे कॉमन बेस है इसलिए यहाँ पे VCB लिखते हैं. Okay. यहाँ पे कॉमन एमिटर यहाँ पे VCE लिखते हैं. ठीक है. उसके बाद आता है इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांजिस्टर इन CE कन्वर्शन में कॉमन एमिटर है. इसमें भी हम इसमें इनपुट रेजिस्टेंस जो RIN है हाँ. उसको हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं डेल्टा BE इंटू डेल्टा IB बाई इंटू VCE. ठीक है. और ये जो है हमारा इनपुट रेजिस्टेंस है. हाँ Okay. और दूसरा जो आउटपुट रेजिस्टेंस है CE कॉन्फ़िगरेशन में R आउट वो है डेल्टा VCE डेल्टा IC IB. और दूसरा वोल्टेज गेन होता है वो करंट गेन इंटू रेजिस्टेंस गेन ऐसे मल्टीप्लाई करके इसको मिलता है. और जो पावर गेन है वो है डेल्टा IC इंटू डेल्टा IB इंटू 2 इंटू R आउट R इन. इसको बीटा 2 से इंडिकेट करते हैं. बीटा 2 इंटू रेजिस्टेंस गेन ऐसे कैलकुलेट करते हैं पावर गेन को. ठीक है. तो ये हमने सारे फॉर्मूले जो है PNP और NPN के वो हमने देख लिया, हाँ which we will be using in the questions later on. हाँ Okay. ये है डेल्टा IC इंटू डेल्टा IB डेल्टा IE. इसमें भी मल्टीप्लिकेशन है, सब मल्टीप्लिकेशन. अगर कुछ लिखा नहीं इसको तो मल्टीप्लिकेशन है वो. Okay. मैं बताया था कि डेल्टा IC पर डेल्टा IE वो गलत है, वो मल्टीप्लाई करना है एक्चुअली. मुझे फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है थोड़े याद रखने चाहिए और कंफ्यूज नहीं होना है. और दूसरा हमने पावर गेन अभी पढ़ा. सो हम देखते हैं कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ट्रांजिस्टर में. Okay. इसमें एक सैचुरेशन रीजन होता है. इसमें क्या होता है कि कलेक्टर करंट ऑलमोस्ट बेस करंट के इंडिपेंडेंट हो जाता है, उसके डिपेंड ही नहीं होता है बेस करंट पे. तो इसमें क्या होता है कि दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड हो जाते हैं. जब ऐसा होता है तो हम उस रीजन को सैचुरेशन रीजन कहते हैं क्योंकि अभी जो कलेक्टर करंट आ रहा है बेस करंट के इंडिपेंडेंट है, फॉरवर्ड बायस्ड है माना इंडिपेंडेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सीधे जो करंट आएगा ऐसे जो पास हो जाएगा, इसलिए हम इसको सैचुरेशन रीजन कहते हैं. उसके बाद कट ऑफ रीजन होता है. उसमें क्या होता है कि कलेक्टर करंट ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है. ये क्यों होता है? दिस हैपन सॉरी ये क्यों होता है जब बोथ रीजन रिवर्स बेस्ड हो. उसमें क्या होता है जब करंट है इस डायरेक्शन में जाना चाहिए लेकिन रिवर्स बेस्ड है तो इस तरफ में फोर्स रहता है, सो करंट कम हो जाता है, इसलिए ऑलमोस्ट कम जीरो हो जाता है. Okay. दूसरा एक्टिव रीजन है. उसमें क्या होता है कि कलेक्टर करंट बेस करंट के डिपेंडेंट होता है लेकिन उसके रिलेटेड होता है. मतलब IC करंट IC द कलेक्टर करंट इज मेनी टाइम्स ग्रेटर देन बेस करंट, मतलब उससे रिलेटेड होता है कि उससे इतने गुने होता है. Okay. उसमें क्या होता है कि थोड़ा चेंज करेंगे अगर हम इनपुट करंट जो डेल्टा IB है तो डेल्टा IC आउटपुट करंट बहुत बड़ा चेंज आता है Okay. एक्टिव रीजन जब होता है. और एक जब होता है जब एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड में हो और कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस्ड में हो. Okay. तो बेसिकली जब दोनों फॉरवर्ड बायस में होते हैं तो एक
पे कट ऑफ रीजन क्रिएट हो जाता है बिकॉज कलेक्टर करंट जीरो हो जाता है, और एक्टिव रीजन तब होता है जब एक फॉरवर्ड बायस और एक रिवर्स बायस होता है. हाँ ठीक है, अब हम देखते हैं उसका एप्लीकेशन, दैट इज ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर. एक सेकेंड, और ये इसमें एक पॉइंट है कि जब एक्टिव रीजन होता है तब हम ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह यूज़ करते हैं, ओके, बाकी इसमें यूज़ नहीं करते. ये पूछा जा सकता है कि कौन से रीजन में ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर. एम्पलीफायर की तरह यूज करते हैं. अब देखेंगे ट्रांजिस्टर को ऑसिलेटर की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं. एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उसमें एक इंडक्टर होता है और एक कैपेसिटर होता है जो दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हो. जब एक बार इसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे देंगे, वरना कोई बैटरी कनेक्ट करेंगे, तो अब एसी में पढ़े होंगे कि ये दोनों ऑसिलेट करेंगे. जब करंट फ्लो करेंगे इसमें, हाँ, तो वो दोनों फ्रीक्वेंसी 1/2/√LC में इन दोनों के फॉर्म में करंट ऑसिलेट हो रहा होगा. ओके, और क्यों होता है, जिसका जो एम्पलीट्यूड है ऑसिलेशंस का, वो प्रेजेंस ऑफ इनहेरेंट रेजिस्टेंस में, एक इनहेरेंट रेजिस्टेंस होता है दोनों में, हाँ, उसकी वजह से ऑसिलेशंस डैम्प होते हैं, मतलब धीरे धीरे कम हो जाते हैं. ओके, क्योंकि जब करंट एक रेजिस्टर से पास होता है तो हीट प्रोड्यूस होता है, हाँ, तो धीरे धीरे इलेक्ट्रिक एनर्जी कम हो जाएगा और ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन धीरे धीरे कम हो जाएगा. and that is the damped oscillation that we are हाँ. talking about. Okay. तो एक्चुअली इसको हम डैम्पिंग कहते हैं, हमने सीखा होगा SHM में. उसके बाद अगर हमें ऑसिलेशन ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड चाहिए, मतलब एम्पलीट्यूड कम नहीं करना है, तो उसमें क्या करते हैं, एन अरेंजमेंट ऑफ रीजनरेटिव और पॉजिटिव फीडबैक फ्रॉम एन आउटपुट करंट इज मेड टू द इनपुट करंट सो दैट द सर्किट लॉसेस में बी कंपेंसेटेड. मतलब इसमें क्या होता है कि हम फीडबैक देते हैं कि लॉस हो रहा है, पॉजिटिव फीडबैक, सो और बाहर से देते हैं ताकि इनपुट करंट में वो कॉम्पेंसेट हो जाए, ताकि जो लॉस हो रहा हो यहाँ से कंपेंसेट हो जाए, मतलब यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा. सो विल गेट ए कांस्टेंट एम्पलीट्यूड. Okay, so this we saw was the application of a transistor as an oscillator. हाँ, तो हमने अभी ट्रांजिस्टर की डिफरेंट टाइप्स थोड़े, जैसे एम्पलीफायर है, ऑसिलेटर है. सो दीज वे द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स. सो अभी हम पढ़ेंगे लॉजिक गेट्स के बारे में. सो बेसिकली लॉजिक गेट्स बहुत आसान है, अगर हम इसे ध्यान से सारे सिंबल्स को याद रखें, उनके फंक्शंस को याद रखें, तो केस कितना भी. Specifically हमें ये भी याद रखना होगा कि उसका आउटपुट किस तरह का होता है. हर लॉजिक गेट का आउटपुट सबसे इम्पोर्टेंट होता है. हाँ, तो अगर इसको याद रखें तो आप लॉजिक गेट्स थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है तो आराम से कर लेंगे. तो लॉजिक गेट्स कह सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक है, इसमें आप इजीली स्कोर कर सकते हैं. सो अब ध्यान से अगर इसे पढ़े तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक. उसके बाद अभी हम देखेंगे कि डिफरेंट गेट्स कौन कौन से हैं. एक होता है नॉट गेट. उसमें क्या होता है कि इट इज़ ए, वर्ड्स में क्या है, इट इज़ ए डिजिटल लॉजिक एंड इन्वर्टर और नॉट गेट विच इम्प्लीमेंट्स ए लॉजिकल नेगेशन. मतलब यहाँ तो इसमें हम बाइनरी सीक्वेंस में एक्चुअली इनपुट देते हैं. तो यहाँ 1 भेजोगे तो 0 आएगा, Zero आता है. क्योंकि इसको नेगेशन देना है. फिर 0 भेजेंगे तो 1 आएगा. Okay. तो बेसिकली नॉट गेट में ऐसा होता है. उसके बाद एंड गेट में क्या होता है, 2 इनपुट होते हैं. तो हमने इसमें 0 को हम लो इनपुट कहते हैं और 1 को हाई इनपुट कहते हैं. Okay. अगर एंड गेट में क्या होता है, अगर दोनों इनपुट अगर हाई नहीं रहेंगे तो उसका आउटपुट हाई नहीं रहेगा, तो 1 नहीं रहेगा. Okay. बेसिकली मतलब दोनों में हाई होगा तो ही वो इनपुट 1 देगा, वरना हाँ. वो 0 देगा. एक्चुअली सब हम ट्रूथ टेबल करके बाद में इस पेज के एंड में पढ़ेंगे क्या होता है. ये सब इनपुट आउटपुट को ट्रूथ टेबल्स में लिखते हैं ताकि इजीली हमको आंसर आ जाए. सो एक्चुअली क्या होता है, एंड और जॉ गेट्स में 2 इनपुट होते हैं लेकिन एक ही आउटपुट आता है. Okay. सो जब तक दोनों इनपुट हाई नहीं होंगे उसका आउटपुट हाई नहीं होगा. दूसरा एक और गेट होता है, उसमें क्या होता है कि एक भी इनपुट अगर हाई हो तो उसका आउटपुट हाई हो जाता है. Okay. मतलब 0 0 आएगा तभी इसका आउटपुट 0 होगा, नहीं तो ऑल केस में अगर 0 या 1 हो या 1 या 0 या दोनों 1 हो तो उसका आउटपुट 1 आ जाएगा. Okay. और दूसरा होता है XOR गेट. इसको हम EOR गेट या XOR गेट भी कहते हैं. Okay. उसमें क्या होता है, अगर 1 आता है मीन्स उसका आउटपुट 1 होता है जब कोई ना कोई एक ही इसका इनपुट 1 हो. अगर दोनों 0 हो या दोनों 1 हो तो उसका आउटपुट 0 रहता है. Okay. इसका फॉर्मूला ये है कि A डॉट B बार प्लस A बार डॉट B. कह सकते हैं कि ये B बार माना नॉट गेट है B का. सो कोई भी आपको A और B के इनपुट्स अगर समझ लें हम लोग, सो इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम कह सकते हैं कि आउटपुट क्या आएगा. दूसरा है नॉर गेट. उसमें हम और गेट को नॉट गेट के सीरीज में कनेक्ट करते हैं. उसका इंडिकेशन ऐसा होता है. Okay. उसमें कुछ नहीं है, बस पहले हम और गेट से आउटपुट निकालोगे, फिर उसका So not yet. So basically the NOR और NAND जो होते हैं, जो हम देख रहे हैं, they are combinations of the gates that we studied ऊपर. हाँ, हम और नॉट और एंड को मिक्स करके नॉर और एंड बनाएंगे. कुछ नहीं होता, उसको कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं. अब क्या करेंगे, पहले इनपुट को और गेट में डालेंगे, फिर उसके आउटपुट को नॉट के इनपुट बनाएंगे और आउटपुट निकालेंगे. सो ये दोनों में जो आपको दोनों को मिला के जो आउटपुट मिलेगा वो नॉर गेट का आउटपुट होगा. सिमिलरली नैंड गेट,
सब एंड और नॉट को कंबाइन करेंगे। एक चीज़, अब पहले नॉट को डाल के फिर नॉर और गेट में नहीं डाल सकते। ओके, तो ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, हाँ। पहले और फिर नॉट, और पहले एंड फिर नॉट। सोच रहे होंगे नाम में नॉर लिखे है, मतलब पहले नॉट आता है फिर और आता है, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है, पहले और आता है फिर नॉट आता है। ओके, तो ये NAND चीज़ हमें ध्यान रखना है। हाँ, और नैंड में भी पहले एंड फिर नॉट। तो हमने कहा था कि अब ट्रूथ टेबल्स पढ़ेंगे। सो ट्रूथ टेबल्स बेसिकली यहाँ पे वो ये है, हमने कहा था कि नॉट गेट में अगर 0 आता है तो 1 आ जाता है, 1 आता है 0 आता है। नॉट गेट में इनपुट एक ही होता है और आउटपुट भी एक ही होता है। ओके, तो बाकी गेट्स और एंड नॉर XOR उन सब में 2 इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। हमने कहा था और गेट में अगर एक भी इनपुट 1 हो तो उसका आउटपुट 1 होता है। अब यहाँ देख रहे होंगे दोनों इनपुट 0 है तभी इसका आउटपुट 0 है, नहीं तो एक भी इनपुट अगर 1 हो तो उसका आउटपुट 1 हो जा रहा है। और एंड गेट में हमने कहा था जब तक कि दोनों उसके इनपुट 1 माना हाई नहीं होंगे इसका आउटपुट हाई नहीं होगा। सिमिलरली देखो 0 0 तो 0 है, 0 1 है तब भी 0 है, 1 और 0 है तब भी 0 है, तो दोनों हाई नहीं तब तक उसका 1 नहीं है। दूसरा है नॉर गेट, इसमें हमने कहा था कि हम और गेट के बाद नॉट गेट को कनेक्ट करेंगे। तो अगर आप या एक्चुअल में डायरेक्ट आंसर लिख दिया तो आप चाहे तो सॉल्व करके देख सकते हैं कैसा आएगा इसका। मैं ठीक है, हम एक्सप्लेन करें अगर तो 0 और 0 है, 0 और 0 और गेट से पास होगा तो 0 आएगा, हमने पढ़ा था यहाँ पे। नॉट गेट से पार्ट होके 1 आ जाएगा। ओके, सिमिलरली 0 और 1 है, 0 और 1 और गेट में डालने पर 1 आएगा, लेकिन ये नॉट गेट है, कन्वर्ट होकर 0 आ जाएगा। 1 और 0 उसका रिवर्स है, इसे नहीं सॉल्व करें। दूसरा है लास्ट केस 1 एंड 1, 1 एंड 1 अगर और गेट से पास करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को हम नॉट गेट से पास करेंगे तो 0 आएगा। सो ट्रूथ टेबल्स कैसे सॉल्व करेंगे, जब आपको बड़ा कॉम्प्लेक्स लॉजिक गेट्स का सीरीज दे दिया हो तो मतलब ट्रूथ टेबल लिखिए, हर एक गेट से पास करने उसका आउटपुट लिखिए, उसी को पास कीजिए और सीधा आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है। तो ट्रुथ टेबल जो है वो बेसिकली हम इट्स अ टेबल वेयर वी डॉक्यूमेंट द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द गेट्स फॉर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इनपुट। हाँ, ठीक है, हमारा कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए और पूरे जो कॉम्प्लेक्स गेट्स का सिस्टम होता है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए। हाँ, ठीक है, तो हमने लॉजिक गेट्स पढ़े, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स, उसकी कॉम्बिनेशंस इन द फॉर्म ऑफ नॉर एंड नैंड गेट एंड हाउ टू एक्सप्रेस दैट इन द फॉर्म ऑफ ट्रुथ टेबल्स। हाँ, अब ये जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसका एप्लीकेशन हम बहुत अलग अलग जगह पे देखते हैं, हाँ। और इसीलिए इस चीज़ का बहुत ही सिंपल टॉपिक है लेकिन फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सो हम यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चैप्टर को खत्म करते हैं, मीन्स थियरी को यहाँ खत्म करेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चंस पे देखेंगे कि ट्रांजिस्टर्स के क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं और लॉजिक गेट्स के क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर में कह सकते हैं कि लॉजिक गेट्स ही है।